2023, and I hope my dear students you all are doing well and safe at home. So kids, today we will be starting with English, and as you can see in the board that here I have drawn many pictures, and here after watching this ये देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा that what we are supposed to do today, right? So let's start. Here today there is no book. We will not follow any book. We will only follow today exercise books. Okay, notebook. So in this board the question is written that make words with pictures. Now here what you have to do is there are some pictures given out and you have to write the names over here. जैसे कि ये जो picture है ना, इसका name आपको यहाँ पे लिखना है. Okay. So let's start. First is apple, right? So you will write A P P L E, apple. Second is ball, so write down B, then A double L, ball. Next is jug, so write down J U G, jug. Fourth is hut, so write down H U T, hut. Next is fish, so write down F I S H, fish. And this one is watch, so write down W A T C H, watch. Next is mango, then write down M A N G O, mango. Next is sun, S U N, sun. Next is tree, T R double E, tree. Okay, so in this way you have to do this question in your exercise book. You can also visit the school website for this for collecting the study material. So now as we have completed make words with picture, now we will be doing write cursive small A to Z. Okay, today we will not write capital cursive capital. Today only we will write cursive small, which you have to do right now in your classroom copy also and your homework copy also. Okay, so all of you take out your English classroom copy and let's write. Let's start. Okay, first is this A, then B, then C. Okay, in this way you will write C, then D, then E, then F. Okay, dear students, you will only write 4 letters in one line. ठीक है, जैसे ये लाइन हुआ ना आपके कॉपी में, जो ये लाइन है ना उसमें सिर्फ आप 4 लेटर्स लिखना. ठीक है, 1 2 3 4. फिर इसे आप सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना. यहाँ पे भी आप 4 लेटर्स लिखोगे एंड देन यू विल कम टू लाइक ऐसे करके 1 लाइन में only 4 letters you will write. Okay, because there is no space, that's why I am writing 5 letters. Okay, then for G we will use 3 lines, then for H, then I, then J, then K, then next is L, then M 2 lines, N 2 lines, for O also 2 lines, for P 4 lines, then for Q 3 lines, for R 2 lines, and for S again 2 lines, then T 3 lines, then U, then V, then W, then X, or else in this way X, then Y, then last is Z. Okay, in this way you will write this one cursive small A to Z, and also you will do this. You can take the help of your parents for making this picture, or if you can do it then make pictures and write the names in your classwork as well as your homework copy. That's all. Okay dear students, we have finished up with English. Now we will be doing maths. Okay, and the question that is writing numbers 191 to 220. Okay, we have already finished up almost the syllabus for book is completed, as we have started in exercise book also. So till 180 we have completed, sorry 90, then today we are starting with 191.
191. Okay, so take out your class book copy and just start with me. The sequence you have to follow is, first of all, HTO you have to write ones, tens, 100. Okay, because you are doing 100 ना, hundreds में आ रहा है ना, ones, tens, 100, तो इसीलिए हम यहाँ पे HP यूज कर रहे हैं. Okay, 100 HTO. Okay, let's start then. First is 191, 192, then 193, then 194, 195, then 196, 197, 198, then 199, then comes 200. Okay, in this way only you will write. ये नहीं कि ones में दोनों लिख दिया, no, ones के place में ये, tens के place में, then 100 के place में. In this way you will write down. Okay, then after 200 comes 201, 202, 203, 204, 205, then 206, 207, 208, 209, then 210. Okay, then next till 220 we will do that. So 210, then comes 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, then 220. Okay, the question is you have to write it 220. Okay, and in this way you will do. And do not forget to mention ones, tens, 100. Okay, and in this way you will be doing in your exercise book. In this way you will do writing numbers 191 to 220. And in this way ऐसे करके neat and clean handwriting में आपको लिखना है. Okay, in this way. So that's all for maths. Okay, dear students, we have finished up with English and maths. Now we will be doing EVS and GK. Okay, today as this topic, sense organ, we have learned in the previous class also, and I have told you that what are the 5 sense organ of a human body. As we have many parts, हमारे human body में बहुत सारे parts होते हैं, but these are whatever the names I'm going to write, that is sense organ. Okay, the parts which responds us. Okay, वो parts जो हमें response करता है. Okay, so these are, first is eyes. Okay, EYES, eyes. Then nose, NOSE, nose. Then tongue, TONGUE, tongue. Then fourth is ear, EAR, ear. And the fifth is skin. Okay, now I'll tell you the uses of these sense organs. Okay, eyes help us to see. Eyes हमें क्या करता है, देखने में help करता है, right? And nose helps us to smell. अगर आपको flowers या फिर खाना, foods के tasty मतलब smell आते हैं, तो किसके through आते हैं? With the help of our nose, right? We can't smell the food, we can't smell the fragrance with the help of our eyes, because eyes just help us to see. Eyes से हम सिर्फ देख सकते हैं, smell नहीं कर सकते, but with the help of our nose we can smell the foods, we can smell perfumes, right? Now third is tongue. Okay, tongue helps us to taste. अब जब हम the food we eat through our mouth, तो वो हमें taste जो देता है ना, वो tongue हमें देता है, whether it is spicy, whether it is hot, or whether it is sweet. Okay, तो tongue क्या करता है, हमें बताता है कि how the food tastes. Okay, like अगर बहुत ज़्यादा spicy हुआ तो वो tongue हमें indicate करता है, अगर खाना बहुत ज़्यादा sweet है तो वो भी हमें tongue बताती है, and अगर food बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना तो वो भी हमें tongue बताती है. Okay, so tongue helps us to taste. And ear helps us to hear. Okay, ear क्या करता है, ear से आप क्या कर सकते हो, smell कर सकते हो, और can you walk through ear? No, ear just helps us to listen. हम ear से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. Like right now whatever I am speaking, what helps you to listen that? Definitely your ear. आपका nose तो आपको, अगर आप ear बंद कर दोगे, आप now close your ear, आप ऐसे hands रखो ear में,
फिर आप सुनो, क्या आप सुन पाओगे या धीरे धीरे सुन पाओगे? एंड इफ यू विल टोटली ब्लॉक योर ईयर तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है? डोंट राइट दिस एट होम. एंड ईयर हेल्प्स अस टू हियर, स्किन हेल्प्स अस टू फील. अब जब कोई आपको मारता है, ऐसे मिठाई लगाते हैं तो वो स्किन बताता है ना. या फिर द वेदर इज वेरी हॉट एंड इफ द वेदर इज वेरी कोल्ड, देन व्हाट हेल्प्स यू टू फील दैट? Your ear or your eyes? No, your skin helps you to feel the temperature of a weather. चाहे वो hot हो, चाहे वो cold हो, what helps you to feel that? Your skin. Okay? So eyes helps you to see, nose helps you to smell, tongue helps you to taste, ear helps you to hear, and skin helps you to feel. So these are the 5 sense organ of our body, that is eyes, nose, tongue, ear and skin. Now what you have to do, as we have done this in previous classes orally, but now you have to write this in your exercise book also. Okay, first of all you will write the question and then you can write this 5 sense organ, and if you can then you can make the picture also. Okay, suppose eyes है ना, ऐसे करके आप पिक्चर्स भी बना सकते हो अपने eyes का, like this. Okay, if you can then. Okay, that's all for EVS. Okay बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने इंग्लिश खत्म किया, मैथ्स पढ़ा आज और EVS एंड जीके भी पढ़ लिया. तो अब हम पढ़ेंगे हिंदी, जो है बुक भाषा सेतु. हम भाषा सेतु बुक से पढ़ेंगे. पेज नंबर रहेगा 23 एंड 24. ठीक है, तो जब आप पेज नंबर 23 में निकालोगे, जैसे कि मैंने आपको मात्रा सिखाया है ना, आ की मात्रा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटी ई की मात्रा. ठीक है, तो ये चैप्टर 4 से है. ठीक है, पेज नंबर 23 में. तो ये आता है आपका छोटी ई की मात्रा. ये है ना छोटी ई, तो इसका मात्रा कैसा होता है? एक आकर मात्रा, फिर यहाँ से जब आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका छोटी ई की मात्रा. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था अ का कोई मात्रा नहीं होता, आ का मात्रा मैंने आपको सिखाया था, आकर होता है. और छोटी ई, आपके बाद क्या आता है? स्वर वर्ण है ना ये, तो हर एक स्वर वर्ण का मात्रा होता है. ठीक है, तो आ के बाद छोटी आता है, तो छोटी ई की मात्रा इस साइड से होता है. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि छोटी की मात्रा इस साइड से घूमता है. तो ये हुआ छोटी की मात्रा. तो छोटी की मात्रा से ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि दिन, फिर गिन, फिर बिल, फिर छू, फिर क्यू. ये सब बहुत सारे शब्द हैं जो कि छोटी की मात्रा से बने जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटी ई की मात्रा के शब्द, जब हम इसको ऐसे, पहले छोटी की मात्रा, फिर द, फिर न, तो छोटी ई की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ई होगा ना. तो द में छोटी ई, न, दिन. ठीक है, द में छोटी ई, न, दिन. द में छोटी ई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये द में छोटी ई लगा है, न में नहीं लगा है. ठीक है, तो जिस अक्षर में मात्रा लगा होगा आप उसी को बोलोगे. जैसे कि द में छोटी ई, न, दिन. सेकेंड है, अब थोड़ा लंबा वर्ड पे जाएंगे. ठीक है, तो ये है सितार. फर्स्ट मैंने छोटी की मात्रा बनाया, फिर स, तो ये हुआ स में छोटी की मात्रा. ठीक है, स में छोटी की मात्रा, तो आकर र, तो ये बन गया आपका सितार. ठीक है, स में छोटी ई, सी, त, आ, आकर र, सितार. छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन होता है ई. ठीक है, तो स में छोटी ई, त, आकर र, सितार. और ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ये. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटी ई की मात्रा पहले ही लगे, कभी कभी बीच शब्दों के बीच में भी आ जाता है. ठीक है, जैसे कि ख हुआ ये, फिर ट में छोटी ई, फिर य आकर खटिया. तो ये क्या हो गया? छोटी ई की मात्रा किस में आया? बीच में आया ना. जैसे ख, फिर ट में छोटी ई, फिर य आकर खटिया. वैसे ही ऐसे भी और बहुत सारे शब्द हैं. तो जैसे कि क, इसमें भी छोटी ई की मात्रा आगे नहीं लगेंगे, पीछे लगेंगे. ये व में छोटी ई, त, आकर कविता. क, व में छोटी ई, त, आकर कविता. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं. तो जब हम जिस अक्षर में छोटी ई की मात्रा या फिर कोई भी मात्रा, वैसे आज हम छोटी ई की मात्रा
देंगे। जैसे कि ये तो द है ना, उसका स्पेलिंग सेम रहेगा बट उसका जो साउंड रहेगा वो ई का रहेगा। जैसे कि दी, द में छोटी ई, दी न, दिन। इसमें भी ये स है, स में छोटी ई लगा है तो क्या होगा सी, सी त आकर र, सीतार। और यहाँ पे भी जैसे कि ख, पहले ख दिया है फिर ट में छोटी ई की मात्रा लगा है तो क्या होगा टी, खटिया। फिर इसमें व में छोटी ई की मात्रा लगा है तो ये क्या होगा वी, ओके, कविता, कविता, ठीक है। इस तरह से है, ये शब्दों को आप पढ़ोगे। एंड पेज नंबर 24 में क्या है, शब्द को उसके चित्र से मिलाओ, ठीक है। तो आपको ये शब्दों को, ये हम हर एक क्लास में कर रहे हैं ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो आपको तो अब आइडिया हो गया है कैसे करना है। तो फर्स्ट वाला जो पिक्चर है वो क्या है, चिड़िया का है, राइट। तो चिड़िया में च, चिड़िया, च में छोटी ई, फिर अड़ में छोटी ई, य आकर चिड़िया। आपको चिड़िया को इसके साथ मैच करना है, ठीक है। जैसा आपको वो पंछी है ना, इसमें जब आपको ये वर्ड मिलेगा तो आपको इसके साथ मैच करना है। एंड नेक्स्ट है सितार। तो सितार कैसा होता है, स में छोटी ई, त आकर सितार, ठीक है। स में छोटी ई की मात्रा लगा है तो सितार का जब ये आपको मिलेगा तो वो आप ये वाला वर्ड मिलेगा, सितार के साथ मैच करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है, रंगीन रेखा पर ई की मात्रा लगाओ, फिर शब्द को पढ़ो और लिखो। ये हमने पहले भी किया था, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द, फिर न दिया हुआ है ना, और यहाँ पे एक रंगीन मात्रा है और यहाँ पे एक फुल मार्जिन है, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें छोटी ई की मात्रा लगाना है, ठीक है। और ये जब पूरा शब्द बन जाएगा आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, द में छोटी ई, न, दिन, ठीक है। फिर इसी तरह से आप दूसरे शब्दों को भी करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नीचे दो अक्षरों के शब्द लिखे हैं, उनमें ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको ई की मात्रा लगाना है और नए शब्द बनाना है। जैसे कि खल, खल लिखा है ना, तो इसमें आपको छोटी ई की मात्रा लगाना है। तो छोटी ई की मात्रा कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ब्लू कलर का मार्जिन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ख में छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, खिल, ठीक है। इस तरह से आप करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुलेख लिखो, सरिता किताब पढ़, ठीक है। क्या है, सुलेख में क्या लिखना है आपको, सुलेख मतलब अच्छे हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, स र में छोटी ई, त आकर सरिता, फिर किताब, क में छोटी ई, त आकर व किताब, फिर पढ़, प र, पढ़। आपको इसको अच्छे हैंडराइटिंग में आप लोग लिखोगे इसको, ठीक है। तो फिर आज हमने क्या सीखा बच्चों, हमने आज छोटी ई की मात्रा सीखा, ठीक है। ये क्या है, अ का कोई मात्रा नहीं होता। फिर हमने देखा अ के बाद आता है आ, तो आ की मात्रा ये होता है। आ की मात्रा से बने शब्द है जैसे कि आम, काम, नाम, दाम, ठीक है। फिर हमने क्या देखा आज, ये आ की मात्रा तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और आज हमने देखा छोटी ई की मात्रा, ठीक है। छोटी ई की मात्रा कहाँ से होता है, इस साइड से खुलता है, ठीक है, इस साइड से, आपको ये याद रखना है। और छोटी ई की मात्रा से बने बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि द में छोटी ई, न, दिन, फिर स में छोटी ई, त आकर र, सितार, फिर ख, त में छोटी ई, य आकर खटिया, फिर क, व में छोटी ई, त आकर कविता। तो ये सारे शब्द हैं जो छोटी ई की मात्रा से बने हैं। और आपका होमवर्क भाषा सेतु का होगा पेज 23 एंड 24 डूइंग पार्ट है, 26